Assalamu alaikum everyone. So today we are going to start our next lecture, and that's the lecture number 7 in medical billing. So in this lecture we are going to cover different aspects of payment posting in medical billing. So how the payment is being received, how we are going to process the payment in our billing system, and how everything is going on. So we are going to discuss every aspect of payment posting in medical billing in this lecture. So stay with us. Let's start the lecture. Okay, in payment posting in medical billing refers to the process of recording and reconciling payments received from insurance companies, patients, and other payers for medical services rendered. So what we are noticing that ये एक प्रोसीजर है या प्रोसेस है जिसके अंदर हम पेमेंट्स रिसीव कर रहे होते हैं किन से रिसीव कर रहे होते हैं इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव कर रहे होते हैं लाइक द क्लेम्स दैट वी हैव सेंड टू द इंश्योरेंसेस सो वी आर रिसीविंग द पेमेंट्स फ्रॉम देम एज वेल also from the patients like if there is a deductible co-insurance or any other copay and something else, so patients are also calling us back, okay, and we are going to receive the payments from them as well, and other payers for medical और किसी पेयर से हम पेमेंट रिसीव कर रहे होते हैं कोई भी अगर हमने मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की होती हैं. इट्स अ क्रूशियल स्टेप इन रेवेन्यू साइकिल management process to ensure accurate financial records and proper reimbursement for healthcare providers. So ये crucial step होता है क्योंकि main चीज़ this can be considered as the pillar of medical billing. Like why you are doing medical billing to receive the reimbursements, to receive the payments for the services that you have provided or rendered. So therefore we are doing this medical billing. Every staff member, every company who is in dealing with the medical billing projects, and they are trying to maintain the revenue cycle management in which they are receiving different kind of reimbursements and payments from different insurance companies, patients, and medical billers, medical billing payers. Okay, so this is the payment posting in medical billing. Let's see what we have next in this one. So receiving remittance advice or explanation of benefits. What is the difference between remittance advice means is we can say this as electronic remittance advice or explanation of benefits. So what is the difference between these two basic terms? So let's start it. In this VS, we can say that when an insurance company processes a claim, they send a document called remittance advice for Medicare or explanation of benefits for private insurance to the healthcare providers. मीन्स ये है कि जब एक क्लेम इंश्योरेंस को भेजा जाता है वो वहाँ पर जाकर क्लेम प्रोसेस होता है, एडजुडिकेट होता है, उसके बाद जो पेमेंट्स हमें रिसीव होती हैं उन पेमेंट्स को एज अ किस तरीके से हमें मिलती हैं. मीन्स कुछ होती हैं इलेक्ट्रॉनिकली, जो ये है कि हमारे सिस्टम बिलिंग सिस्टम के अंदर ही उनकी एक्सप्लेनेशन आती है कि हाँ भी हमने इतनी आपकी अलाउड अमाउंट थी, इतनी बिल्ड अमाउंट थी, ओके, और इतना हमने पे किया है, इतनी को इंश्योरेंस बनाई है, इतनी को पे है और इतने डिडक्टिबल्स हैं. सो ऑल द बेनिफिट्स आर डिटेल्ड ओवरव्यूड इन दैट इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस. ठीक है. एंड ईआरए होती है, ये इलेक्ट्रॉनिकली ही होती है, जो इलेक्ट्रॉनिकली ही आपके सिस्टम के अंदर आ रही होती है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स दैट इज द पेपर वन. ठीक है. मीन्स ये पेपर के फॉर्म में होती है और ये हमें पेपर के फॉर्म में मिलती है. ठीक है. और ईआरए जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही आपके बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर रिसीव होती है. Okay, so this document outlines the details of the claims, including the allowed amount and the denied amounts, deductibles, co-insurance, and any other adjustments. So as we discussed, like when we are going to receive the EOB or the ERA, okay, so in those documents are the electronic remittance, as we just said that we are going to have different details in there, okay, including the allowed amount, like what was the allowed amount, what was the denied amount, deductibles, co-insurances, and if there is any other adjustment, those are all detailed informed in those documents. So this was all about the remittance advice or explanation of benefits. So this is the overview about these two medical billing terms. So let's see what we have next. Okay, so इस तरीके से this is the remittance advice from Cario software. Okay, so Cario is a software that is being used in medical billing process. Okay, so this can be shown as the ERA that we received from different insurances, like as you can see that there is a claim reference ID, the status as processed as primary, total claim payments, and below you guys can see that the service date was 4/20/20
2022. Okay, procedures and the units were billed, the billed amount, the allowed amount, the adjustments, deductibles, co-insurance, co-pay, and the payment. Okay, so this is the information that we receive in form of ERA. So this is the just an example of ERA. Okay, so we also have the example of explanation of benefits. So that's the how the EOB looks like. In this section, we can see that there's a name of the patient, okay, and the subscriber information like the member ID, group name, okay, and there's a patient name, place of service, outpatient, date received, okay, and the claim number, type of service, date processed, and below you guys can see that there are the same information that we already have in the ERA as well, but this is a paper one. So in this there is also included that the total charges, the other informations, amount paid, and the patient responsibility includes the things that are mentioned below like the deductibles, co-insurance, co-pay, total patient responsibility. So that's how an EOB looks like. Okay, so next, what we have, reviewing and matching. The medical billing staff reviews the RA incident remittance advice or EOB to ensure that the information matches the claim submitted. Means जो क्लेम हमने सबमिट किया था, ठीक है, उसके अंदर फिर जो हमें पेमेंट रिसीव होती है या हमने जितने कोड्स बिल किए थे, जो सीपीटी वहाँ पे शो हो रहे होते हैं, कितने उनके यूनिट्स बिल किए गए हैं, ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि हाँ भी हमने इतना बिल किया था और जो हमें ईआरए या ईओबी आई है उसके अंदर भी उतने ही यूनिट्स लगे हैं, उतने ही सीपीटीज की पेमेंट्स रिसीव हुई हैं. ओके, दे वेरीफाई पेशेंट्स एंड सर्विसेज डिटेल्स एज वेल एज पेमेंट डिटेल्स एज वेल. ओके, सो मीन्स वो पेशेंट की डिटेल्स को भी चेक करते हैं एज वेल एज पेमेंट डिटेल्स भी चेक करते हैं कि हाँ भी आया कि इनके अंदर कोई कंट्राडिक्टरी थिंग्स तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो लाइक हमने बिल नहीं की और हमें पेमेंट आ गई है या ओवर पेमेंट आई है या इस तरह की अगर कोई या दोबारा पेमेंट है. समटाइम्स ऐसे होता है कि पेमेंट्स दो बार आ जाती है, ठीक है, तो वो फिर हमें रिफंड करनी पड़ती है. ओके, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द protocols, SOPs, and ethics as well. So we have to refund if we receive the duplicate payments. Okay, so जो एआर पर्सन्स होते हैं, जो मेडिकल बिलिंग स्टाफ होता है, वो इन सब चीज़ों को वेरीफाई कर रहा होता है कि हाँ भी आया कि जो हमें ईआरए और ईओबी रिसीव हुई है उनके अंदर सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द क्लेम सबमिटेड आर करेक्ट वन. ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट. ओके, जब हमें ईआरए को रिव्यू कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि आया कि इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. सो व्हाट्स नेक्स्ट, द एक्चुअल पेमेंट अमाउंट्स आर इंटर्ड इनटू द बिलिंग सिस्टम. ठीक है, फिर उसके बाद ये है कि जो हमें अमाउंट्स रिसीव होती है और जो हमें पेमेंट्स रिसीव होती है, फिर हम उनको अपने जो बिलिंग सिस्टम होता है, लाइक कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बिलिंग कंपनीज यूज़ करती हैं, लाइक इंस्टामेड, लाइक कैरियो, लाइक टेलकोर, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ other softwares as well which are being used in medical billing world. Okay, so this includes the insurance company's payments, patient payments, co-pays, deductibles, co-insurance, and any other secondary insurance payments if applicable. सो पेशेंट का जो डाटा हमें ईआरए या ईओबी हमें रिसीव होती है, उसको फिर हम अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर उसके अकाउंट के अंदर जाकर उसको अपडेट करते हैं कि आया कि इस पेशेंट का हमने क्लेम सेंड किया था, उसकी हमें पेमेंट रिसीव हुई है. जब पेमेंट रिसीव होती है तो उसका सारा स्ट्रक्चर जो है वो हम ऑलरेडी उस अपने सिस्टम के अंदर ऐड करते हैं, उसको अपडेट करते हैं कि हाँ भी इसकी पेमेंट इतनी आई है, इसकी इतने डिडक्टिबल बने हैं, इतनी को इंश्योरेंस बनी है, इतनी अलाउड अमाउंट थी, और ये ब्ला ब्ला ब्ला. So all the things are entered precisely and correctly without any errors into the billing software. Okay, so this is the entering the payments into the software, and there is a another thing that is the adjustments. Okay, so have a look on adjustments are made based on contractual agreements between the provider and the insurance company. So इसके अंदर कुछ adjustments भी होती हैं कि हाँ भी कहा जाता है कि let's see, these adjustments might include write-offs for contractual discounts, adjustments for denied services, and adjustments for timely payment discounts. So adjustments के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होती हैं कि हम भी वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो कुछ सर्विसेज हैं, लाइक ये है कि इंश्योरेंस के प्लान के अंदर होता है कि हाँ भी अगर आप लोग ये सर्विसेज हमें आप लोगों ने दी हैं, ठीक है, और इसको आप हमें बिल करते हैं, तो हम वी आर नॉट गोइंग टू पे बिकॉज दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इंश्योर्ड प्लान. इंश्योर ने जो प्लान लिया है उसके अंदर ये सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हम इनको पे भी नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है. तो इंश्योरेंस कंपनी उस चीज़ को एज ए एडजस्टमेंट डाल देती है. ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर द डिनाइड सर्विसेज मीन्स वो सर्विसेज जो डिनाई कर देते हैं कि हाँ भी ये हम इंश्योरेंस उस पेशेंट के प्लान के अंदर नहीं है, तो सो वी आर नॉट गोइंग टू पे दोज वंस, सो वी आर डिनाइंग योर क्लेम.
ओके। और कुछ और इसके अलावा डिस्काउंट्स होते हैं कि हाँ भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो फिर हम ये बेसिकली किन दो के दरमियान हो रहा होता है, एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोवाइडर, ठीक है, द पर्सन और द डॉक्टर द फैसिलिटी हु आर रेंडरिंग द सर्विसेज टू द पेशेंट एंड द इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान ये एक एग्रीमेंट होता है कि हाँ भी कुछ सर्विसेज जो होंगी उसके ऊपर आप लोग हमें डिस्काउंट देंगे, ठीक है, या कुछ जो है ये जो अगर आप का पेशेंट आता है और इस तरीके की आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, सो वी आर नॉट गोइंग टू पे दैट बिकॉज दिस इज नॉट इन द प्लान ऑफ द patient. So these kind of adjustments are also included in the ERAR EOB as well. Okay. So let's see what we have in this section. This is denials and appeals. Okay. So इसके अंदर denials और appeals भी होती हैं, like ऐसे कि if any services were denied, the provider's billing staff reviews the reason for denial. If it's an error on the provider's end, the claim might need to be corrected and resubmitted. फिर देखा जाता है कि आप भी आया कि हाँ भी जो हमें ERAR EOB रिसीव हुई है, ठीक है, उसके अंदर कोई मसला है, ठीक है, यहाँ के यहाँ भी उन्हें हमें चाहिए था कि पे करना चाहिए था, ये तो पेशेंट के प्लान के अंदर इंक्लूडेड थी, ठीक है, या किसी और वजह से कोई डिनाइल कोड है, लाइक कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, लाइक पेशेंट का कोई डाटा गलत था, उसकी मेंबर आईडी गलत थी, या हमने किसी गलत इंश्योरेंस को वो क्लेम सेंड कर दिया है, तो इस तरह की अगर कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर जो प्रोवाइडर का बिलिंग स्टाफ होता है वो इस चीज़ को रिव्यू करता है और उस क्लेम को दोबारा रीसबमिट किया जाता है करेक्ट करके, ठीक है। इफ़ द डिनाइल इज़ ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट विद द इंश्योरेंस कंपनीज डिटर्मिनेशन एंड अपील्स प्रोसेस माइट बी इनिशिएटेड। अगर देखा जाता है कि हाँ भी अगर कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ हमारा कोई डिसएग्रीमेंट था, ठीक है, मीन्स ये लाइक ही है कि हम कह सकते हैं इफ़ द डिनाइल इज ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट विद द इंश्योरेंस कंपनी डिटर्मिनेशन, अगर इंश्योरेंस कंपनी के साथ कुछ ऐसा हमारा डिसएग्रीमेंट था कि हाँ भी वी आर नॉट गोइंग टू पे दो सर्विसेज, ठीक है, वो कहते हैं कि हम इन सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं करेंगे, और आप लोगों के पास कुछ ऐसा टेस्टिंग आई है जो कि मेडिकल नेसेसिटी थी कि आप कहते हैं कि हाँ भी इसको हमें एट दैट मोमेंट लाजमी करना था, अगर ये सैंपल किसी और लैब के अंदर भिजवाया जाता या कहीं और इसकी टेस्टिंग होती तो वो सैंपल डिके हो जाता, ठीक है, डिस्पोज हो जाता, सो वी हैव टू परफॉर्म दैट टेस्ट एट दैट टाइम, राइट ऑन द टाइम, due to medical necessity. So in that regard, we are going to process an appeal. So we are going to send the appeal to the insurance company and saying that this was a medical necessity, therefore we have processed and tested that sample, so please consider or reconsider our claim again. सो इस तरीके से हम अपील बनाते हैं। अपील का सेक्शन हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा इंशाल्लाह, उसको भी हम कवर करेंगे कि हम भी अपील कैसे बनाते हैं, अपील के अंदर क्या क्या डिनाइल्स हो सकते हैं, मींस कौन कौन से डिनाइल आते हैं जिसके ऊपर फिर हम अपील्स करते हैं, किस तरीके से की जाती है। सो ऑल दैट इंशाल्लाह वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव, it's posting to the patient accounts. Okay, as we mentioned that payments are posted to individual patient accounts and balances are updated accordingly. Means जब payments receive हो जाती हैं तो हम patient के account के अंदर उनकी जो payments receive होती हैं उनका account उस तरीके से update कर देते हैं कि हाँ भी आया कि इस patient की हमें इतनी payment थी और इतनी हमें payment receive हुई है, इतनी payment इसकी pending है, ठीक है, इतने इसके deductibles वगैरह बने थे, तो वो हम उसको जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर उस पेमेंट को अपडेट कर देते हैं। Patients may receive statements for any remaining balances they owe after insurance payments and adjustments. So as we just discussed about this one, like ये है कि अगर कोई चीज़ इंश्योरेंस का प्लान कवर नहीं करता, ठीक है, पेशेंट ने डिडक्टिबल्स अपने पूरे नहीं दिए हुए उस साल के, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी कुछ जो पार्ट उनका बनता है वो पे कर देती है, बाकी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देती है। जब पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, सो वी आर गोइंग टू सेंड द स्टेटमेंट्स टू द पेशेंट्स ऑन देयर एड्रेसेस। सो जब हम उनको पेशेंट को उनकी स्टेटमेंट सेंड करते हैं कि हाँ भी आया कि आपका प्लान ये था, आप लोगों की इतनी इंश्योरेंस तो पेमेंट आ चुकी है इंश्योरेंस की तरफ से, और सेकेंडली जो ये पेमेंट रह गई है, सो यू आर गोइंग टू पे दिस वन, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू आर लायबल फॉर दिस पेमेंट, तो वो फिर इस चीज़ को पेमेंट को हमें पे कर देते हैं, ठीक है। So next what we see, it's reconciliation. Payment posting includes reconciling the payments received with the amounts expected बेस्ड ऑन द RAR EOB, ठीक है, पेमेंट्स जो हमें देखी जाती है कि हाँ भी जो हमें पेमेंट रिसीव हुई है, ठीक है, उसको रिकनसाइल किया जाता है विद द अमाउंट एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन द ERAR EOB, ठीक है, और उसको देखा जाता है कि आया कि जो हमें रिसीव हुई है या जो हमने बिल की थी तो वो क्या अकॉर्डिंगली हैं कि नहीं है,
ठीक है। डिस्क्रिपेंसीज और एरर्स आर इन्वेस्टिगेटेड एंड करेक्टेड, तो अगर उसके अंदर कोई इशू होता है तो उसको फिर हम ये है कि एट दैट टाइम उसको करेक्ट कर दिया जाता है। रिपोर्टिंग एक्यूरेट पेमेंट पोस्टिंग इज एसेंशियल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। इट हेल्प्स प्रोवाइडर्स ट्रैक रेवेन्यू, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज एंड ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ। तो एक्यूरेट पेमेंट पोस्टिंग बहुत ही लाजमी ज़रूरी होती है फाइनेंशियल प्रोसेस के लिए, क्योंकि अगर इस तरीके से ये है कि अगर पेमेंट्स रिसीव हो रही हैं और सही से पोस्ट नहीं हो रही, ठीक है, या पेमेंट्स कम रिसीव हो रही हैं, तो ये सारा अगर प्रोसेस चलता रहेगा तो फिर पेशेंट का जो बैलेंस है वो आउटस्टैंडिंग होता रहेगा, इंश्योरेंसेस के ऊपर पेंडिंग क्लेम्स जाते रहेंगे, ठीक है। अगर डिनाइल्स आते हैं तो वो डिनाइल्स अगर पेंडिंग है उनके ऊपर अपील्स नहीं हो रही या उनके ऊपर फॉलो अप नहीं हो रहे, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लैग आता है और रेवेन्यू साइकिल जो एक प्रोसेस जिसको स्मूथली चलना चाहिए वो उसके अंदर लैग आता है, वो सही से नहीं चल पाता। तो इससे ये है कि कोई बेनिफिट नहीं होता उन बिलिंग कंपनीज को जो रन कर रही होती हैं ये सारा सिस्टम, ठीक है। सो रिपोर्टिंग इज ऑल्सो नेसेसरी, every aspect should be taken care in a great way, so everything should be corrected and accurate according to the things they are submitting to the insurance and they have in their own system as well. So there is another aspect, that is the automation. Many healthcare providers use electronic health record EHR and practice management software to automate the payment posting process. काफ़ी सारे providers ऐसे होते हैं जो EHR means and practice EHR को means maintain करते हैं, means करते हैं ताकि यह है कि जो payments हमें receive हो रही हैं वो automatically उनके system के अंदर आती हैं, system उनको process करता है, system उनको update करता है, ठीक है। These systems can match electronic remittance advice files from insurance companies with claims submitted electronically, और जो claim जो हम electronically ही submit कर रहे होते हैं ऑनलाइन, जो इंश्योरेंस सेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली ही हमें फिर जब ERA आती है, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस आती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली ही अपडेट हो जाती है उनके सिस्टम के अंदर। सो दैट्स द गुड थिंग कि हाँ भी ऑटोमेटिक ही उसके अंदर सारी चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं उनके सिस्टम के अंदर, मेडिकल बिलिंग सिस्टम के अंदर, मेडिकल बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। Okay, so this is all about the automation in this section. What we have next. Okay, accuracy and attention to detail and paramount are paramount in the payment posting process. Means accuracy होनी चाहिए और attention to detail होनी चाहिए, ताकि ये है कि okay, so accuracy and attention to detail are paramount in the payment posting process. Accuracy and attention means attention के साथ आपने जब आपके पास ERA आई है, ठीक है, या EOB आई है, तो आपने उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यह है कि उसकी पेमेंट की पोस्टिंग होती है, सो इसके अंदर एक्यूरेसी होना लाजमी है। मिस्टेक्स कैन लीड टू डिस्क्रिपेंसीज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड पोटेंशियली इम्पैक्ट रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, यू कैन से दैट, ठीक है। जब मिस्टेक होगी, कोई अगर आपने गलत अमाउंट पे पुट कर दी है, ठीक है, कोई जो चीज़ थी उसके अंदर, जो सॉफ्टवेयर के अंदर या पेशेंट के अकाउंट के, अगर सपोज आपने पेमेंट किसी और अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दी है, ठीक है, सो ये सही है कि काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। मैनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन्वेस्ट इन वेल ट्रेन बिलिंग स्टाफ, सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड ऑनगोइंग ट्रेनिंग टू इंश्योर दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इफेक्टिवली। तो इस प्रोसेस के अंदर काफ़ी सारी जो बिलिंग कंपनीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट देती हैं ताकि यह है कि जो प्रोसेस चल रहा होता है रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट का वो स्मूथली चलता रहे, ठीक है। सॉफ्टवेयर अच्छे से अच्छे मीन्स वो लेती हैं, ठीक है, बड़ो करती हैं, ताकि यह है कि उनके जो सॉफ्टवेयर हैं वो काफ़ी अपडेटेड हों, ऑटोमेटेड हों, जिसके अंदर ये है कि एरर्स और एरर्स बहुत कम हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स उसके अंदर ना आए, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों को ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, इसके लिए प्रोफेशनल्स हायर किए जाते हैं, ताकि यह है कि जो उनका पेमेंट पोस्टिंग का सिस्टम है या रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट के अंदर कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो वो सारी स्मूथली चलती रहे। इसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और डेडिकेशन होनी चाहिए, ताकि यह है कि ये प्रोसेस स्मूथली रन हो। Okay, thank you so much for watching us on lecture 7. So this was all about this lecture. In the next lecture, we are going to discuss all about the appeals process and the AR. Like who are the AR means in accounts receivable, they are called, they are what they are doing and what kind of different functions and responsibilities the AR person or personnel or the professionals do they have. So inshallah, we'll meet soon in the next lecture, lecture number 8. So thank you so much for watching us. Take care. Have a nice rest of the day. Goodbye. Allah Hafiz.